नमस्कार। वेलकम टू कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी। कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 1001 स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस की ये जो हम आ, सिलसिला कर रहे हैं, आज उसका फोर्थ वीडियो है। आप लोगों ने पिछले 3 वीडियो में मुझको जितना प्यार दिया, आप लोगों का आशीर्वाद जितना मेरा साथ रहा, मैं आभारी हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो मुझसे जो आप लोगों का जो चाहत है उसको पूरा पूरा करने के लिए। सो वेलकम टू माय चैनल एंड योर लव, योर well wishes, that will help me. Thank you very much for your support. Let's start today's session. New 10 important sutras from Brigadier Leela. Right? First, let me share your screen. If anyone's chart, if Saturn, Moon, and Jupiter, if these three planets are combined, might be in the same sign, might be in the consecutive houses, might be in the trine. Saturn Jupiter Moon connection shows the native will suffer from bronchial problem, bronchial asthma, chest complaint, chest disorders, especially breathing related disorders. If Rahu is there, then the problem will be maximum. If Rahu not there, then the native will suffer from that problem because Jupiter is Karak of the oxygen, Saturn is the Karak of pain, and Moon is the Karak of water, fluid. So when in the bronchioles the fluid accumulates, that causes problem in the breathing. So अगर किसी के चार्ट में जुपिटर सैटर्न मून कंजंक्ट है, ये शो करता है कि व्यक्ति जो है ये इनकी एस्थमा की कोई बीमारी हो सकती है। मतलब जो ऑक्सीजन का कारक है वो जुपिटर है, और सैटर्न पीड़ा का पेन का कारक है, और मून जो है वो पानी का कारक है। अगर राहु होता है तो ये प्रॉब्लम और गहरा है, बट सैटर्न जुपिटर मून यही शो करता है कि नेटिव को कोई ना कोई खांस की बीमारी, सांस की बीमारी हो सकती है। सेकेंड प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में राहु और मून कंजंक्ट, ये शो करता है कि नेटिव को कोई ना कोई मेंटल इलनेस, उस मानसिक पीड़ा, बीमारियां हो सकता है, मेंटल डिजीजेस। सपोज मेंटल डिजीज इसका मतलब नहीं कि पागल हो जाएगा, नॉट लाइक दैट। किसी स्पेशल किसी कारण में फियर, बहुत मन में भय है, बहुत मन में किसी को लेके परेशानियां है, टेंशन है, दिस इज सीन फ्रॉम द मून जुपिटर, मून राहु मीन्स सम काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर रहे। So if anyone's chart Moon and Rahu conjunct, that shows that the native will have mental disorders, mental illness. Now, mental illness does not mean that he or she will be mad, not like that. Some kind of mental problem might be there. Fear, illusion, hallucination, any kind of mental problem might be there. It is also true if Moon and Rahu in the trine, if Moon and Rahu in the 1/7, that is Moon in the Rahu Ketu success, then that will be definitely. अगर मून ट्राइन में होगा तो भी होगा सैटर्न से, और मून अगर राहु केतु के एक्सिस में है तो भी व्यक्ति को ऐसा हो सकता है, तो होगा। अगर किसी के चार्ट में जुपिटर और केतु कंजंक्शन में है, जुपिटर एंड केतु इन द सेम साइन, और माइट बी Jupiter in one sign and Jupiter is going towards Ketu. Suppose Jupiter is here and Jupiter is going towards Ketu. Jupiter debilitated हो तो ऐसा होगा, ऐसा कोई रूल मैंने नहीं बोला। मैं बोला कि जुपिटर अगर कहीं है, उसके साथ केतु है, उसके ट्राइन में केतु है, उसके नेक्स्ट सेकंड हाउस थर्ड हाउस में केतु है, इस केस में नेटिव को डेट्स लोन होगी। नेटिव लोन के लिए बहुत प्रॉब्लम नेटिव को सामना पड़ेगा किसी ही साइन में
जुपिटर हो, चाहे exalted जुपिटर ही क्यों ना। So in anyone's chart, if Jupiter and Ketu conjunct, Jupiter having Ketu in the same sign, Ketu in the trine, Ketu in the second or third sign from Jupiter, it shows that the native will have debts, and bad debts may suffer from loan, may suffer from lots of problems in the life, lots of tensions. Jupiter Ketu creates tension, it will give tension unnecessarily. The native will be a variety stores of tensions, right? नंबर 4, अगर किसी के चार्ट में जुपिटर से सन फिफ्थ में होता है, फिफ्थ में, या सन से जुपिटर नाइन्थ में होता है, जुपिटर से सन फिफ्थ में हो और उल्टा आप सोचे तो सन से जुपिटर नाइन्थ में, अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति के जो संतान होंगे वो बहुत बहुत फेमस पर्सनालिटी होंगे। So if anyone's chart sun is placed fifth from Jupiter or Jupiter is placed 9 from the sun, the native child will be very famous person in the world. The native son especially, might be daughter also, so that native child will be a very very famous person in his life. And when that will happen, that will specially happen at the age of 24, 23, 24, from that part, or might be 11, 12, but 23, 24 is a very good time when he or she will get maximum फेम। तो कब ये होगा, जुपिटर सन में कब व्यक्ति के संतान को सम्मान प्राप्ति होगी, स्पेशली होगी उनकी जब उम्र होगा 11 से 12 साल या 23 से 24 साल, इस समय सबसे ज्यादा उनको सम्मान प्राप्ति के योग बनते। नेक्स्ट 5 नंबर, अगर किसी के चार्ट में मून और मर्क्यूरी का कंजंक्शन हो, एक साइन में हो, सेकंड साइन में हो या फिर ट्राइन में हो, मून मर्क्यूरी हो, साथ में जुपिटर अगर ना हो, तो ये व्यक्ति किसी भी नशे का बहुत जल्दी शिकार हो जाए। एक दिन 2 दिन सिगरेट पी लिया, ये सिगरेट खाना शुरू करेंगे। एक दिन क्या दोस्तों के साथ में आके शराब पी लिया, बार बार मन चाहेगा कि मैं पीऊंगा। So Moon and Mercury, this combination shows the native will have any kind of addiction, or he or she may be easily engaged in that addiction, especially if Jupiter is not there. If Jupiter is there, then Jupiter might save the native. Otherwise, he or she will have a very critical, very strong addiction, you may say. Next, number 6. सैटर्न अगर किसी के चार्ट में डेबिलिटेटेड हो, डेबिलिटेटेड मतलब सैटर्न डेबिलिटेटेड होता है एरीज साइन एट ए पर्टिकुलर डिग्री, किंतु हम उस पर्टिकुलर डिग्री को बीएनएन में नहीं लेते, बीएनएन में हम लेते हैं सैटर्न अगर एरीज में हो तो ही डेबिलिटेशन। अगर किसी के चार्ट में सैटर्न डेबिलिटेटेड हो तो वो व्यक्ति अपने जीवन के 30 साल के आसपास के बाद, यानी माइट बी 25, might be 30, 35, तो उस समय के बाद उनके जीवन में प्रोग्रेस आएगा। अगर किसी के चार्ट में शनिदेव रेट्रोग्रेड डेबिलिटेटेड होते तो वो 30-35 साल के बाद उनके जीवन में प्रोग्रेस आएगा। So if anyone's chart is Saturn debilitated, the native will get professional settlement after 25 to 35 years. It will depend on the degree of the Saturn, but mainly after 25 and from 25 to 35, that will be his time when he will get good professional chances. Number 7, अगर किसी के चार्ट में सन और राहु कंजांक्ट हो तो उस व्यक्ति के पिता का मृत्यु 18 साल में, 9 साल में, 18 साल में, 27 साल में या 36 साल में होने की संभावना है। If in anyone's chart, if Rahu and Sun are conjunct in the same sign, or Rahu is placed in the second sign to Sun
and sun is approaching towards Rahu, the native's father may get death at the age of 9 or 18 or 27 or 36. Next prediction. अगर किसी के चार्ट में सन, मर्क्यूरी और मार्स ये तीनों प्लेनेट कंजाउंट हो, सन, मर्क्यूरी, मार्स अगर कंजाउंट है, इसका मतलब है कि उनके पिता के पास लैंडेड प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, जमीन होगी. इफ समवन चार्ट सन, मर्क्यूरी, मार्स कंजंक्ट, his father will have land, he will have very good land. नंबर 9. अगर किसी के चार्ट में सन एंड मून कंजंक्ट हो, सन मून कंजंक्ट इन द कंसेक्यूटिव साइन, और moon may be placed second to sun, moon may be placed the same sign to sun, in trine to sun, right? You know, sun and moon makes tithi. I am not going to that part, but sun and moon are conjunct in someone's chart. He will get name and fame away from his or her birthplace, not in that same country. He or she has to travel a different country. I may not say country, might be a place where different cultured people lives. So, अगर किसी के चार्ट में सन मून का कंजंक्शन है, उनको अपने जन्म स्थान से दूर जाके ही अपने जीवन का जो सक्सेस है वो उनको मिलेगा. जन्म स्थान से दूर जाके, दूर मतलब विदेश ऐसा नहीं, दूर मतलब जहां पर दूसरे कल्चर के लोग रहते हो, इस जगह. आज का लास्ट. अगर किसी के चार्ट में सन, केतु, सैटर्न एंड राहु, सैटर्न एंड जुपिटर, ये 4 प्लैनेट कंजाउंट है. सन, सैटर्न, राइट, सन, सैटर्न, केतु एंड जुपिटर, ये 4 प्लैनेट अगर किसी ना किसी तरह से जुड़ा है, मतलब हम नारी के जितने कनेक्शन लेते हैं उतने कनेक्शन अगर होता है, तो व्यक्ति जरूर एक दिन किसी भी इंस्टीट्यूशन का हेड बने. If in anyone's chart, if Sun, Jupiter, Saturn and Ketu are conjunct, the native will become head of the institution any day in his life. He will definitely become head of the institution. So that's all for today. I think my initiative is you can appreciate. अगर अच्छा लगता है मेरा इनिशिएटिव तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए. और मैं चाहता हूं कि विघ्नंदी नाड़ी का जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान हमारे गुरुजी आजीराव जी का है, तो ये ज्ञान इस धरती पे सारे जीव, ह्यूमन जहां पर भी है, उनके पास जाए, ताकि वो खुद अपने चार्ट खुद देख सके, अपने भविष्य जीवन देख सके. मैं चाहता हूं कि हम सब स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाए. इसी उम्मीद के साथ आज यही समाप्त करता हूं. बहुत जल्द फिर मिलेंगे. ओम नमः शिवाय. जय राम कृष्ण.